सर कौन सा वाला पीडीएफ? Hello everyone. Today we are going to talk about the principles of management का case studies. Principles of management का case studies में हम लोग हेनरी फेयोल, साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी अपना टेलर सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है. इन योर स्कूल यू ऑब्जर्व दैट योर बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस, चॉक्स इन द लाइब्रेरी, ऑफिस रिकॉर्ड्स इन द स्टाफ रूम. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड? मैं आपको सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक बार बता दूंगा. डैड, UC, USSR, OIC. D से डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी. D से डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, और उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. O से ऑर्डर, I से इनिशिएटिव, स्केलर चेंज एंड एस्पिरिट दे कॉर्प्स. हाँ जी, समझ में आ गए. अब यहाँ पर कौन सा है? द बुक्स आर टू बी केप्ट इन ऑफिस, चॉक्स इन द लाइब्रेरी, ऑफिस रिकॉर्ड इन स्टाफ रूम. ये सब हमारा किसके अंदर जाएगा? ये आएगा हमारा ऑर्डर के अंदर. हेलो, हाँ जी, नमस्ते. मैम हमने वो एल्कॉन का बुक शॉप बंद कर दिया है, हमारा नहीं है. नहीं मैम, नहीं नहीं मैम, हमारा अब नहीं है वहाँ पे. नहीं मैम, नहीं मैम, उन्होंने अलग ही करा. हाँ जी, क्योंकि हम मम्मी के बाद हम मैनेज कर नहीं पा रहे थे. Next चलिए. So how will that affect the achievement of school objectives? If everything is going to be in order, so school objectives will be achieved, and effectively or efficiently results are going to be there. As a manager, what steps will you take to rectify? We are going to have maximum efficiency. We are going to place each and everything at a maximum place. ये हमारे लिए बहुत important है. Production manager ने पूछा, asked the foreman to achieve the target of 200 scooters per day, but he did not give him the authority. Can the production manager blame the foreman if he is not able to achieve the target? No, because along with authority there always needs to be balance with responsibility. अगर authority और responsibility balance नहीं होंगे तो कभी भी आपका business नहीं हो पाएगा. So इसको आंसर लिखना कैसे है? The production manager cannot blame the foreman because he did not give him the authority to requisition of tools from the stores department. He has no authority, he could not fulfill his responsibility. In the case the principle is violated, Fayol suggested that there must be a balance between authority and responsibility. Authority and responsibility must go hand in hand. Responsibility without authority will make the subordinate ineffective. At the same time, giving authority without fixing responsibility may lead to misuse of authority. ये आंसर इस तरीके से ही लिखा जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल फॉर्मेट. अब आ जाइए. सोनिया लिमिटेड वाज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स. बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है ड्यू टू इंक्रीज डिमांड. कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग. अगर आपके मार्केट शेयर को इंटैक्ट करना है तो कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने अपने वर्कफोर्स को शुरू करा. बट दिस रिजल्टेड इन मेनी प्रॉब्लम्स. ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर द एफिशिएंसी डिक्लाइंड. Sometimes the subordinates had to work for more than one superior. The workers were becoming indisciplined. Spirit of teamwork, which had characterized the company previously, has begun to wane. अब बताइए यहाँ पे एक मिनट एक लाइन करके बताइएगा, ऐसे ही तुक्का मत भेजना. लाइन बता और बता कौन सा है. सर एक तो है यूनिटी ऑफ कमांड. कहाँ पे लिखा है? सर मोर देन वन. The subordinates had to work for more than one superior. The subordinates had to work for more than one superior. ये क्या हो गया? इधर यूनिटी ऑफ कमांड. सेकंड आप बताओ. इनडिसिप्लिन. तो यहाँ पर क्या होगा? डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी. एस्पिरिट दे कॉर्प्स, क्योंकि टीम वर्क का है. तो ये आपके तीनों के तीनों आपने लाइन कोट करी और ये आपका आंसर यहाँ पे डन. कोई दिक्कत? अब आप बोलोगे इतना आसान आएगा. हाँ, इतना आसान आएगा नॉर्मल तरीके से. The production manager of Hirsch Limited instructs the salesman to go slow in selling the product, where the marketing manager is insisting on fast selling to achieve the target. Which principle of management is being violated? क्या बात है लड़कों? सर डायरेक्शन नहीं होगा? नहीं भाई,
यहाँ पर भाई डायरेक्शन तो हो गया कि सबका एक ही जैसा टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला, मार्केटिंग मैनेजर अलग बोल रहा है, सेल्समैन को प्रोडक्शन मैनेजर अलग बोल रहा है, तो भैया यहाँ पे 2 वायलेशन हो गई ना। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा वायलेट हुआ है। Kanika or Priyanka are typists having same educational qualification. Kanika is getting 16,000, Priyanka is getting 10,000. Which principle is violated? Equity. Very good. Next, 6th wala. Rishabh very often speaks to the people at all levels, passing on instructions regarding his department. Which principle is being overlooked? Scalar chain. The management, यहाँ पे स्केलर चेन क्यों आया? क्योंकि हर एक लेवल बहुत बढ़िया। Management and workers have entered into an agreement that workers will do overtime to cover up the losses. In return, manager ने बोला I will increase the wages, but the manager later refused to increase the wages. Remuneration of workers. Discipline. आंसर देख लीजिए, डिसिप्लिन। रेम्यूनरेशन क्यों नहीं? क्योंकि रेम्यूनरेशन हो गया कि हम करेंगे, हम आपका बिल्कुल कर रहे हैं, हम सबका करेंगे, बट डिसिप्लिन का मतलब एग्जैक्टली ये होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले। आज पैसे नहीं है पर कल को अगर टारगेट अचीव हो गया तो हम आपके पैसे बढ़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। नेक्स्ट 8th वाला तत्व आप ट्राई करें। सिमरन, an employee has the objective of maximizing his salary, but the organizational objective is to maximize cost at lower. There was some disputes. Even the organization interest was given priority. Name the principle. वो examination to employee होगा। Unity of direction. Subordination of individual interest to general interest. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर एक जने के चक्कर में अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो खत्म कर दोगे। आपने क्या बोला था? रेम्यूनरेशन होता है जहाँ पर हम इक्वल पे सबको देंगे, ठीक है। आपने क्या बोला? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिया किसी को। So objective अच्छा तो मतलब सैलरी को मैक्सिमाइज करना। अभी यूनिट ऑफ डायरेक्शन में 1 and 1 प्लान आता है और यूनिट ऑफ डायरेक्शन लेट्स गो। अब बताइए। Radhika opens a jewelry showroom in Jaipur after completing a course. She has employed 11 persons. She divides the work into small tasks and each employee is trained to perform her specialized job. Salesperson are allowed to close a deal with the buyer by giving maximum discount, whereas the decision to give further rests with Radhika. In the earlier days of starting the business, 5 were asked to put in extra hours. In return, she had promised to give them special incentive. यहाँ पर एक प्रिंसिपल बन गया, कौन सा बना अभी बताऊंगा। पहले वाला भी बना। पहला भी बन गया। After 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to honor her commitment. However, when it comes to setting the conflicts, she tends to be more biased towards female employees. यहाँ पर एक और प्रिंसिपल तैयार हो गया। अब बताइए कौन कौन से प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करें। पहले डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले she has employed and she divides the work. This is known as division of work. यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड कैसे भाई? 10% डिस्काउंट है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे किसी ने वायलेट थोड़ी ना करा है। एग्जाम में नहीं पढ़ा था मैंने। नहीं, इसने कोई वायलेट थोड़ी ना हुआ है। सेकंड, मुझे यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है? नहीं, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, क्योंकि उसने बोला कि आप मुझे ये दो, मैं आपको बदले में ये दूंगा। सर वो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, क्लोज द डील विद बायर्स वाला। After 6 months when the buyers was doing it, she awarded a cash bonus. और उसके बाद लास्ट में आएगा इक्विटी। और कौन सा बोला आपने? हाँ, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आ जाएगा। अब देखिए, ये प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड लास्ट इज इक्विटी। अब मेरा सवाल, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कर दिया। स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ वायलेशन। अगर कल को किसी का भी हो तो वायलेशंस आप बता सकते हैं, ठीक है। आपको बाइंडर वाले नोट्स भेजे हुए हैं, उसके अंदर सारी वायलेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। अभी जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं आपको 5 मिनट का बोलूंगा कि पहले आप वो पढ़ें। इसके बाद नीरज इज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग Mehul, his project manager, tells Neeraj that the course of his work he will come across many opportunities which may tempt up to misuse his power or family's benefits at the cost of larger interest of the company. In such situation, he should exhibit exemplary behavior as it will raise his stature. Also, for interacting, he should adopt the formal chain of authority and communication. बताइए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन, ठीक है। ये देखिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ये वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन से आप देख सकते हैं
कि आपको लार्जर जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करना है, दूसरा आपका स्केलर चेन, ठीक है, कि कैसे कैसे आप इंटरेक्ट करोगे, कैसे कैसे फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी रहेगी। 2 वैल्यूज, ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिटेन। वैल्यूज अपनी तरफ से आपकी वोकैबुलरी के ऊपर डिपेंड करता है। ये restraint रिस्ट्रेंट मतलब कि हमेशा अपने पास ही अपने तरीके से ही काम करें। Okay. तो इतना लालची नहीं होना। हाँ, चलिए। कैसे पता है? देविंदर इज अ क्लास 12 स्टूडेंट। सतिंदर उसका एल्डर ब्रदर, वो मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ड्यूरिंग वेकेशंस व्हेन सतिंदर कम्स होम, देविंदर shows him the business studies project that he is preparing. सतिंदर कहता है कि these principles are also the part of MBA course curriculum, but he finds the principle different from that of pure science. Outline the concept of management. बताओ। तो हमें इसमें प्रिंसिपल्स का तो वो पता पूरा? मुझे उसका वो याद आ रहा है। अरे इसमें थोड़ी सी गलती है। आउटलाइन द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन देनी है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज द ब्रॉड एंड द जनरल गाइडलाइन। इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस होना चाहिए था, आइडेंटिफाई द फीचर होना चाहिए था। पीछे बोल यस, हाँ। व्हाट व्हाई डज सतिंदर फाइंड द प्रिंसिपल डिफरेंट फ्रॉम प्योर साइंस? इसमें वो बोलेंगे फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज वगैरह। दे आर नॉट एज रिजिड। What वो अपने वो जो अपने पहले चैप्टर में पढ़े थे वो सारे के सारे जो नॉट क्या कहते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, सॉरी प्रोफेशनल, वो तो प्रोफेशन में था, सॉरी नॉलेज नहीं है, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। What do the principles of management form the core practice? It provides management with universal reality. वो जितने UGC वाला था ना, वो जो आपके चलिए वो टॉप एसएमएस है। टॉप एसएमएस है, हाँ इम्पोर्टेंस है, सॉरी टॉप एसएमएस आपका ये है इम्पोर्टेंस, ये आप लिखेंगे एक बारी प्लीज। इसको टॉप एसएमएस को एक बार रिवाइज कर लीजिए, इम्पोर्टेंस वाला पहला टॉपिक। लेट्स गो। डेबिट क्रेडिट याद रखो। नूतन, वी आर स्टार्टिंग अगेन। नूतन टिफिन बॉक्स, ये क्वेश्चन आया हुआ 2016 में। द नूतन टिफिन बॉक्स वॉज स्टार्टेड इन मुंबई बाय मुंबई डब्बावालास. Dabbawalas are the soul of Mumbai, which aim to provide efficient service by providing tasty home food to all the office goers at the right place and at the right time. Service uninterrupted है, even on the days of bad weather, political unrest, social disturbances. They have also started online booking through their website. Owing to this tremendous popularity, the Dabbawalas were invited as a guest lectures by the top business schools. डब्बावाला 25 से 30 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, विद क्या कहते हैं ग्रुप लीडर. ये लीडर नहीं है, लीडर है. ईच ग्रुप टीम्स अप विद डिफरेंट अदर ग्रुप्स टू डिलीवर द टिफिन ऑन टाइम. दे आर नॉट ट्रांसफर्ड बिकॉज दे हैव टू रिमेंबर द एड्रेस. तो उनको एरिया का पता हो जाता है तो उस पर मास्टर हो जाते हैं. दे फॉलो सर्टेन रूल्स, जैसे अल्कोहल नहीं देंगे, नो लीव विदाउट परमिशन, वाइट कैप हमेशा पहनी रखनी है, ID कार्ड्स अपने होने चाहिए. So recently, on the suggestion of few self-motivated fellow men, the Dabbawala thought out and executed a plan of providing food left in tiffins by customers to slum children. They have instructed their customers to plate red sticker if the food is left in the tiffin to be fed to the poor children later. State any one principles of management and one characteristics of management. जो आप इनिशिएटिव, एक मिनट, आप बोल रहे हो इनिशिएटिव, आप क्या बोलते हो? ट्रीट कर लो. बोल रहा हूँ कि there is आप इनिशिएटिव की लाइन भी बता देना. Suggest करा. ठीक है, आप बताओ. So, मुझे लग रहा है कि there is unity of command because वो एक बंदे से वो कर रहे हैं, कमांड ले रहे हैं कि कहाँ पे जाना है. बहुत बढ़िया. आप ऑर्डर, हर चीज ऑर्डर में है, आप ये कहना चाहते हो? क्या ऑर्डर में है? ठीक है. सो आंसर ऑर्डर नहीं है, इनिशिएटिव है, डिसिप्लिन है, एस्पिरिट दे कॉर्प्स और स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल है. ठीक है. डिसिप्लिन कहाँ पर? क्या ID कार्ड्स कैरी करना,
वाइट कैप पहनना, ठीक है। और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब है सबको अपना टाइम देते हैं हम लोग, सबको एक जैसा रुकने का समय दे रहे हैं, किसी को हम वो लोग चेंज नहीं कर रहे हैं अपने एरियाज में, वो एरियाज वही के वही हैं। हाँ जी बोलो। नहीं क्या हुआ? ऑर्डर हो सकता था। क्या हुआ? ऑर्डर तो अच्छा ठीक है। हाँ तो सकता था, क्यों नहीं? कहाँ पे? और महसूस को देख लीजिए, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, फ़ोन आ गया था। सबसे पहले यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल दिया हुआ है, कैसे हर एक बंदे को मौका दे रहे हैं। यहाँ पर एस्प्रिट दे कॉप्स कैसे हो रहा है, 25 से 30 पीपल ऑर्डर हो रहा है टू ऑल द गोअर्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सर्विस इज अनइंटरप्टेड इवन ड्यूरिंग द डेज ऑफ वेदर। तो डिसिप्लिन हो गया यहाँ पर, तो डिसिप्लिन भी हो गया, एस्प्रिट दे कॉप्स भी हो गया। इनिशिएटिव नीचे उन्होंने अपनी सजेशन दी है, समझ में आया? सजेशन आपका उसमें आएगा। अब नेक्स्ट इज आपका विद्यालय। आपका विद्यालय बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट and encourages team building through a mix of curricular, co-curricular and sport activities. On its founder day, a stage performance had to be put up. Thus, prefects was constituted. They all decided to use the recycle paper. There was a spirit of unit and harmony. आगे spirit the cops. And all the members supported. With mutual trust and belongingness, the program was planned and executed. Karthik realized that the group had applied one of the principles of management while planning and executing the program. He was so inspired by the function that his father to apply to the same principle in his business. ठीक है, यहाँ पर स्प्रिट द कॉप्स बोला मैंने। दूसरा, 2 फीचर्स, मैंने मैनेजमेंट इज परवेसिव, हर लेवल पे चाहिए, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, हार्मनी एंड यूनिटी। तो आपको ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट तो याद से रटे होने चाहिए, तभी आप यूज कर पाओगे। वैल्यूज अपनी तरीके से डाल सकते हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट, टीम वर्क। समझ में आ रहा है दोस्तों? Yes, sir. पक्का मेरे भाई? लेट्स गो। Nikita और Salman, they have completed the MBA and started working in a multinational company. Both are working very hard. They are happy with their employer. Salman की हैबिट है पीछे backbiting करने की, wrong reporting करने की. All the employees knew about it. At the time of performance, the performance of Nikita was judged better. Even when their boss, Mohammad Sharif, decided to promote Salman, stated that being a female Nikita will not be able to handle the complications. Principle of equity. क्या बात है? Identify the values. Gender equality being one. There should be no discrimination. जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। Yes. Good human behavior होना चाहिए, gender equality होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा दोस्तों? Yes, sir. पक्का? एक बार रीड कर लीजिए। ये तो साथ है ना, इंट्यूटिव में ना साथ। नहीं, आसान तो सब है, आसान तो पूरा सब कुछ है, तेरे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। अभी इसके बाद प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पहले रिवाइज करेंगे, फिर एक साथ उसकी केस स्टडियाँ मारेंगे, जितनी कर सकते हैं 5:30-6 बजे तक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज का तुम्हारा टास्क प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तेरी पहली बुक, दूसरी बुक हो गई ना, पहला चैप्टर हो गया, आज तेरा होगा PO और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पॉप। आज का दिन है पॉप का, ठीक है। कल सुबह Sir, कुछ वक्त तक क्लास में? कल सुबह वही 1 बजे से 6 बजे तक ही ठीक है, Sir, 1 बजे से 6 भी बेटर रहेगा। सर सुबह थोड़ा सा पहले कर लो प्लीज, समझा करो थोड़ा सा पहले। नहीं समझ सकता थोड़ा सा समझ जाओ ना, 12 बजे ले लो, ऐसा मत करो। क्यों? अरे सर जरूर तो भाई। 1 मिनट रुकिए। सिग्मा इज अ लार्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स। कंपनी के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है। मिस्टर शशांक जो CEO हैं, उन्होंने टारगेट सेल्स करी है 10 करोड़ की। सेल्स के लिए द मार्केटिंग मैनेजर ईशान कहता है कि हम 10% कस्टमर्स को देंगे, फाइनेंस कहता है नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बंदा फंस गया, ये कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? 2 बॉसेस के बीच में नहीं, Unity of 2 command. यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉसेस हैं। Esprit de corps. हाँ बोलो। अच्छा नहीं, बिल्कुल गलत। एस्पिरिट द कॉर्प्स, यहाँ पे कौन सा स्पिरिट है टीम वर्क भाई? यहाँ तो सीधा एक बॉस कह रहा है ये करना है, एक बॉस कह रहा है ये करना है, तो दोनों बॉस के पीछे बच्चा फंस गया, Sorry. तो यूनिटी ऑफ कमांड ही तो होगा। हाँ, तो विच प्रिंसिपल? कोऑर्डिनेशन का ये कंसेप्ट है।
और प्रिंसिपल्स कौन सा है? यूनिटी ऑफ command. कमांड। हाँ, कंसेप्ट में कोऑर्डिनेशन, एस्प्रेस द कॉप्स क्या एस्पिरिट द कॉर्प्स? नीचे देखो। वो एस्पिरिट द कॉर्प्स में प्रॉब्लम ये है भाई साहब, वो एक अलग प्रिंसिपल आ सकता है, पर जो मेन प्रिंसिपल है वो यूनिटी ऑफ कमांड है। ठीक है वो आ सकता है, बट देयर शुड बी ओनली वन बॉस। हाँ मेन आपको अगर एक आया वहां पे लिखा हुआ तो आप क्या लिखोगे? यूनिट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। पर अगर आप 2 लिखना चाहते हैं कि आप तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स और हुए हैं, वो भी है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या बोला है, दे शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी, वो तो आप कहीं पे भी बकचोदी डाल दो, कोई इंग्लिश फर्क का नहीं ही पड़ता। गलत है। समझ में आ गई? कंसेप्ट्स का ध्यान रखियो, कंसेप्ट्स इज लाइक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा तो कंसेप्ट का फंक्शन लिखना है। हाँ भाई, फंक्शन लाइक मैनेजमेंट। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम उसी दिन के- उसके बाद इसके बाद चलते हैं, व्हाट इनटू वर्क। एबीसी वाला पढ़ा। सर मैं बताऊं ट्राई कर। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म Principles of management. सर एस्पिरिट द कॉर्पस होना मैंने चाहिए। वैसे बताया आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सर एस्पिरिट द कॉर्पस नहीं नहीं, so because वो they are Reason working work क्या because दे आर टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस। हाँ वर्कर्स का। अच्छा, वर्कर इनिशिएटिव नहीं होगा फिर। पर सर उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, अब इसने यहाँ पे टेलर के बारे में बात करी है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे टेलर को स्पेसिफाई करना इनके लिए जरूरी था। समझ तो कह रहा हूं क्वेश्चन गलत है भाई। क्वेश्चन गलत है यहाँ पर इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर लिखना बहुत जरूरी था। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, सीधा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिख दिया। मैंने तो हम तो fail कोऑपरेशन नहीं नॉट लिखते हैं। इंडिविजुअल सीसी में पढ़ा है तो हम फेयर का हमने बताया। हमने फेयर का बताएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनिशिएटिव दिख रहा है, दूसरा इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क दिख रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं टेलर पे, पर टेलर उससे पहले मैं चाहता हूँ एक बार आप रिवाइज कर लीजिए पहले। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, यहाँ पर हर चीज़ में आप लोगों को किसी के बारे में, कोई इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं हो रही, हर चीज़ मिलजुल के हो रही है। तो देर इज़ अ कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, कॉम्पिटिशन इज रिप्लेस्ड। अब आ जाइए वोल्टेक। वोल्टेक इज मैन्युफैक्चरिंग LED bulbs to save electricity and running under heavy losses. To revive the losses, the management thought of shifting the unit to the backward area. The management also asked the workers to work overtime without any additional payments. तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैसे? सर क्योंकि था वो वर्कर्स ओवर टाइम विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट। विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और वैल्यूज, इन्वायरमेंट के बारे में सोचिए, बैकवर्ड रीजन्स के बारे में सोचिए। चलिए, कुशल is leading automobile company in which the various departments are setting up. ठीक है, which aspects of management is the customer is lacking? What will be the impact? बताओ दोस्त। सर यूनिटी ऑफ कमांड, कोऑर्डिनेशन भाई, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं है ना उनके इसमें। यहाँ पर आस्पेक्ट बोल रहा है, आस्पेक्ट। आस्पेक्ट इज कंसेप्ट। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स, तूने बोला यूनिटी, भाई यहाँ पर हो रही है बात वेरियस डिपार्टमेंट्स आर सेटिंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे कोई यूनिटी ऑफ कमांड का इशू नहीं है, सब यहाँ पे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट देखना जरूरी है। डन। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्यों नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हाँ ये भी अच्छा सवाल है, क्यों नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या बोलता है कि सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर एक ही चीज में करनी चाहिए। यहाँ पर भी आपके पास यही हो रहा है, सेटिंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स विदाउट पेइंग इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल। यहाँ पर उसने ये नहीं बोला कि हम सबको करना चाहिए, उसने ये बोला ऐसा हो रहा है। अब जो चीज ऐसा हो रही है वो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। समझ में आई बात? हाँ सर, तो हम उसको अनरिलेटेड हो गया। यस, ओके। मेरे को उम्मीद है BST का पेपर भी तगड़ा डिटेल में, क्या 101%, डिटेल में क्योंकि उसका पेपर अजीब सा हो गया ना। प्रोसेस का केमिस्ट्री का भी ऐसे ही था, केमिस्ट्री का पेपर अच्छा आया था, तो डिटेलिंग नहीं जाएगा ये। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बताइए टेल को जल्दी। टेलीफोन लिमिटेड तो कराओ क्वेश्चन
इनिशिएटिव मेरा भी इनिशिएटिव Equity. इक्विटी इक्विटी कहाँ से इक्विटी? Actually दूसरे को पास हुई दूसरे अरे तो दूसरे की बात नहीं सुनी तो इनिशिएटिव की बात हुई ना. यहाँ पे इक्विटी तो होता है कि जब हमारे पास अलग अलग पेमेंट के रिलेटेड है. वैल्यूज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स. समझे? अब आ जाइए खंडेलवाल. This is the scientific angle on डिसिप्लिन. अच्छा नहीं, साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक पूछ रहे हैं. हाँ. साइंटिफिक हार्मनी और डिस्कॉर्ड. डेवलपमेंट ऑफ वर्क. अच्छा वो चेक कर लेते हैं. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है. क्यों? क्योंकि इस केस में डेफिनेशन इसमें बोला टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज कंसर्न फॉर मोर देन 10 years. होल्ड हो गया. They want to expand further and did not declare bonus. The workers got agitated. लड़ाइयाँ शुरू हो गई. डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर. लड़ाइयाँ शुरू हो गई. स्ट्राइक हो गया तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, एम्पैथी नहीं हुआ. ठीक है. श्रेया प्लीज दूसरी वाली जूम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा. ऑफ द कंपनी